Hello, good morning students. Now I am going to start next chapter, chapter number 6, factors leading to the formation of the Muslim League. In this chapter we will cover causes behind the growth of communalism in India. Second, events and factors leading to the formation of Muslim League. It means all those points behind the formation of Muslim League. We can call causes. Third, formation of Muslim League. Aims and objectives of Muslim League, direct results of formation of Muslim League, attitude of the national Muslims, and role of Muslim League in early years. The assertive nationalist leader Bipin Chandra Pal, in his book Memories of My Life and Times, has opinioned that Hindu-Muslim communal problem was not acute during the pre-British rule. According to Dr. Bipin Chandra, there was hardly any communalism in India before the last quarter of the 19th century. According to the book of Bipin Chandra Pal, book name was Memories of My Life and Times. According to this book, उन्होंने अपना ओपिनियन रखा है कि हिंदू मुस्लिम कम्युनल प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम प्री ब्रिटिश रूल के पहले नहीं थी. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बिपिन चंद्र, देयर वाज हार्डली एनी कम्युनलिज्म इन इंडिया बिफोर 19th सेंचुरी. ऐसी कोई प्रॉब्लम हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी प्रॉब्लम नहीं थी बिफोर द ब्रिटिश रूल. नाउ आई विल डिस्कस कॉजेज बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया. I will discuss all those points which encourages communalism in India during British rule especially. So the first point is the British policy of divide and rule. We all know Lord Curzon applied this policy, divide and rule policy, to make a gap, to make a bridge between Hindu and Muslims. During the revolt of 1857, the Hindus and Muslims had fought shoulder to shoulder, but after the suppression of the revolt of 1857, the British officials had taken a vindictive attitude towards the Muslims. The Muslims were looked upon with suspicion, but this attitude changed in 1870s. With the rise of the nationalist movement, the British statesmen grew apprehensive about the stability of their empire in India. We all know during the revolt of 1857, Hindu Muslims दोनों आमने सामने लड़े थे. But after the suppression of the revolt of 1857, British officials का जो attitude है Muslims की तरफ वो change हो गया था. Muslims को शक की निगाह से देखा जाता था, suspicion से देखा जाता था. But this attitude changed in 1870s. और जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा, नेशनल मूवमेंट स्वराज अटेनमेंट के लिए बढ़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उसी तरह ब्रिटिश स्टेट्समैन वो धीरे धीरे इंडिया के एम्पायर के लिए और एप्रीहेंसिव हो रहे थे. टू चेक द ग्रोथ ऑफ अ यूनाइटेड नेशनल फीलिंग इन इंडिया, दे डिसाइडेड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. और अब यूनाइटेड नेशनल फीलिंग जो इंडिया के नेशनलिज्म फीलिंग जो अमंग द माइंड्स ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा इंकरेज हो रही थी, नेशनलिज्म फीलिंग, पैट्रियोटिक फीलिंग काफ़ी इंकरेज हो रही थी और हिंदू मुस्लिम्स भी यूनाइट हो रहे थे. तभी ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे. दे प्लान्ड टू डिवाइड द पीपल अलोंग द रिलीजियस लाइन्स. In other words, to encourage communal and separatist tendencies in Indian politics. For this purpose, they decided to win over to their side the Muslim zamindars and the newly educated Muslims. The colonial government treated the Hindus and the Muslims as separate communities. It readily accepted communal leaders as authentic representatives of all their co-religionists. As the Congress movement gained force, the government's hatred towards the Hindus also grew. The government wished to keep Muslims aloof from the Congress. Now, British government अब यहाँ पे Muslims को चाहती है कि वो कांग्रेस से दूर रहें. British government Hindus से बहुत ज़्यादा हेट कर रही थी एंड कम्युनलिज्म सेपरेशन चाह रही थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में. एंड दे डिसाइडेड British government decided to win over the hearts of the Muslim zamindars. Muslim zamindars का उसने दिल जीत लिया. वो मुस्लिम्स को एजुकेट करा रही थी और इसी वजह से उसने मुस्लिम्स को अपनी तरफ कर लिया. Gradually,
More and more Muslims, young men, looked to the British for the protection of their interest against the Hindu majority. अब ब्रिटिश ने ये सब भरा मुस्लिम्स के दिमाग में कि हिंदू मेजॉरिटी है, आपका ध्यान नहीं रखा जाएगा, बाद में आपका सुना नहीं जाएगा, आपकी सुनी नहीं जाएगी बाद में. तो ग्रेजुअली मोर एंड मोर मुस्लिम यंग मेन जो थे वो ब्रिटिश से हेल्प चाहते थे एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट अगेंस्ट द हिंदू मेजॉरिटी. नेक्स्ट point, educational and economic backwardness of the Muslims. We all know that communal separatist trend तो था ही among the Muslims to some extent due to the relative backwardness, because of their backwardness in education. कहीं ना कहीं वो education से मात खा रहे थे, ट्रेड इंडस्ट्री में भी वो मात खा रहे थे, और बिकॉज ऑफ बैकवर्डनेस एजुकेशन उनकी गवर्नमेंट सर्विसेज भी इतनी अच्छी नहीं थी. तो मोस्टली जमींदार्स एंड एरिस्टोक्रेट्स were consisted in the Muslim upper class. The upper class Muslims during the first 70 years of the 19th century were extremely anti-British. तो पहले तो upper class ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, कंजर्वेटिव थे, hostile to Western education. So the number of educated Muslims in India remained very small. Consequently, modern Western thought and nationalism did not spread among the Muslim intellectuals. तो जो Muslims लिटरेट थे, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके ऊपर मॉडर्न वेस्टर्न थॉट, नेशनलिज्म का कोई भी असर नहीं पड़ा. देयरफॉर दे रिमेन्ड ट्रेडिशनल एंड बैकवर्ड. वो पुराने ही बने रहे और बैकवर्ड बने रहे. लेटर एज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सैयद अहमद खान, नवाब अब्दुल लतीफ एंड बदरुद्दीन त्यागजी एंड अदर्स, मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड अमंग द मुस्लिम्स एज वेल. But the proportion of the educated was far lower among the Muslims. लेकिन तब भी जो मुस्लिम्स का एजुकेशन लेवल था वो कम था as compared to Hindus, Parsis और Christians. Since modern education was essential for entry into the government service, the Muslims had lagged behind the non-Muslims in this respect. हाँ, तो मॉडर्न एजुकेशन देखिए बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट सर्विस के लिए, एंड मुस्लिम्स कहीं ना कहीं पीछे हो रहे थे इस बेसिस में. व्हेन मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड अमंग द मुस्लिम्स, द एजुकेटेड मुस्लिम्स लुक्ड फॉर गवर्नमेंट जॉब. हाँ, मॉडर्न एजुकेशन जब मुस्लिम्स को दिया गया, इम्पार्ट किया गया, और जब मुस्लिम्स एजुकेटेड हुए तब वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ देखें. बट इन इंडिया देयर वर वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हेंस द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड द लॉयलिस्ट मुस्लिम लीडर्स easily incitated the educated Muslims against the educated Hindus. तो अब यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं और जो लॉयलिस्ट मुस्लिम लीडर्स हैं, जो ब्रिटिश के प्रति लॉयल हैं, वो एजुकेटेड मुस्लिम्स को एजुकेटेड हिंदूज के अगेंस्ट करके अपनी तरफ कर रहे थे. It was declared that if the educated Muslims remained loyal to the British, they would be rewarded with government job and other special favors. ये डिक्लेयर किया गया था कि अगर एजुकेटेड मुस्लिम्स ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहेंगे तो उनको इनाम के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा और अदर स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलेगा. पेनफुल इम्पैक्ट्स ऑफ कम्युनल इंस्ट्रक्शन इन हिस्ट्री. इन दोज डेज हाईली डिस्टॉर्टेड versions of history were taught in schools and colleges. This contributed to the growth of communalist feelings among the Muslims and Hindus. The British historians divided the Indian history into Hindu and Muslim periods. In the Hindu period, they dubbed the Muslim as foreign invaders who settled down in India as conquerors. In the Muslim period, they identified the Muslims as rulers and the Hindus as subjugated people. I want you all to know that baneful impacts. What is the meaning of baneful? मतलब गलत प्रभाव पड़ा, कम्यूनल इंस्ट्रक्शंस दिया गया पढ़ाई स्कूलों में, कॉलेजेस में, जो भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, हिस्ट्री जो भी पढ़ाई जाती थी स्कूल कॉलेज में, तो ऐसी पढ़ाई जाती थी कि कम्युनलिस्ट फीलिंग्स का ग्रोथ और कम्युनल गैप हो सके अमंग द मुस्लिम एंड हिंदूज में. ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे वो डिवाइड कर दिए थे इंडियन हिस्ट्री को 2 पीरियड्स में. वन था हिंदू पीरियड एंड द अदर इज मुस्लिम पीरियड.
हिंदू पीरियड में वो मुस्लिम्स की बुराई करते थे कि मुस्लिम्स फॉरेन इन्वेडर्स हैं जो पुरानी एज कॉन्करर्स इंडिया में सेटल्ड हो गए हैं। मुस्लिम पीरियड में वो मुस्लिम्स को एज अ रूलर बोलते थे और हिंदूज एज अ सब्जुकेटेड पीपल बोलते थे, है ना। दे आइडेंटिफाइड द मुस्लिम्स एज रूलर्स एंड द हिंदूज एज सब्जुकेटेड पीपल। नाउ बाय एक्सपोजिंग द atrocities committed by the individual rulers, the British historians tried to create hatred among the Hindus against the Muslims and the Muslims against the Hindus. Yes, ये जो strategy इन्होंने अपनाई, this is adopted by the British historians. This was created with intention to create hatred, to create hatred feeling among the Hindus against the Muslims, ताकि हिंदूज मुस्लिम से लड़े और नफरत करें और मुस्लिम्स भी हिंदूज से नफरत करें। This created a rift means gap between these two communities. The British historians did not lay stress on the composite culture of India. इंडिया के कल्चर के बारे में, कॉम्पोजिट कल्चर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द हिंदू रिसर्जेंस। द स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ सम ऑफ द assertive nationalists had a strong religious Hindu tinge. They abandoned the elements of composite culture. For example, Tilak's propagation of the Shivaji and Ganpati festival, Aurobindo Ghosh semi-mystical concept of India as mother and nationalism as a religion and the starting of the anti-partition agitation with dips in the Ganga could hardly appeal to the Muslims. हाँ, बहुत सारी speeches और writings हो रही थी, assertive nationalist leaders जो लिख रहे थे वो सब हिंदुज़म के ही बेसिस में था। फॉर एग्जाम्पल तिलक का शिवाजी गणपति फेस्टिवल मनाना, सेलिब्रेट करना, औरबिंदो घोष का भी था, तो उन्होंने भी एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब स्टार्ट किया तो गंगा में डिप करके, स्नान करके इस तरीके से उन्होंने दिखाया, तो ये हार्डली अपील हो रहा था मुस्लिम्स को। तो बिसाइड्स दे कुड नॉट रिस्पॉन्ड विथ फुल इंथुसियाज्म व्हेन दे सॉ राणा प्रताप और शिवाजी being hailed as national heroes. However, this did not mean that the radical leaders were anti-Muslims. ये यहाँ पे प्रूफ नहीं किया जा रहा है कि जो radical leaders हैं वो एंटी मुस्लिम हैं, नहीं। In fact, most of them, including Tilak, favored Hindu Muslim unity. बहुत तो चाहते ही थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, but as the assertive nationalist drew inspiration from the ancient Indian culture, there was a certain Hindu tinge in their political ideas. हाँ, क्योंकि assertive nationalists जो थे उनको पुराने इंडियन कल्चर से इंस्पायर थे, वो इंडियन कल्चर को वो फॉलो कर रहे थे, तो उस टाइम हिंदू टच था, तो वही जो वो फॉलो कर रहे थे वही उन्होंने पॉलिटिकली फॉलो कर लिया। ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया, वो Britishers took advantage and they took as a poison in the minds of the Muslims. ठीक है, वो मुस्लिम्स के माइंड में भरने लगे, हेट्रेड फीलिंग क्रिएट करने लगे among the Muslims against the Hindus. This result was that a large number of educated Muslims either remained aloof from the rising nationalist movement or became hostile to it. जिसकी वजह से बाद में क्या होता है कि बहुत ढेर सारे एजुकेटेड मुस्लिम्स जो होते हैं वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं। आउटलुक ऑफ सर सैयद अहमद खान। इन द राइज ऑफ द सेपरेटिस्ट टेंडेंसी along communal lines, Sayyid Ahmad played an important role. In the beginning of his life, he was a man of liberal views, a brave nationalist. He founded the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh, which is now Aligarh University, to spread education among the Muslims. Its principal, Mr. Beck, brought about a change in Sayyid Ahmad's outlook and made him think on communal lines. तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने फाउंड किया है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इट, विच मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अब
हम लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। एंड ये कॉलेज स्प्रेड किया गया था टू इम्पार्ट एजुकेशन, है ना, टू एजुकेशन देने के लिए मुस्लिम्स को। और उनके जो प्रिंसिपल थे मिस्टर बेक, इन्होंने चेंज कर दिया। सैयद अहमद खान का आउटलुक बिल्कुल भी नहीं था कम्युनिटी गैप क्रिएट करने के लिए, बट सैयद अहमद खान का जो आउटलुक था उसको चेंज करा मिस्टर बेक ने, और उनको मजबूर कर दिया कि कम्युनल लाइंस के बारे में सोचिए, मतलब कम्युनिटी वाइज सोचिए। इन द 1880s, सैयद अहमद डिक्लेयर्ड दैट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर डिफरेंट एंड इवन डाइवर्जेंट। ही प्रीच्ड कंप्लीट ओबीडियंस टू ब्रिटिश रूल। तो उन्होंने अपना ओबीडियंसी दिखाया टूवर्ड्स ब्रिटिश रूल कि वो कितने लॉयल हैं। और ही ओपिनियन दैट सिंस द हिंदूज फॉर्म्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि हिंदूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, मेजॉरिटी है उनकी इंडियन पॉपुलेशन में, तो दे वुड डोमिनेट द मुस्लिम्स। तो वो बाद में मुस्लिम्स को डोमिनेट कर सकते हैं अगर ब्रिटिश रूल जब हटेगा, इन केस ऑफ द विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो ही अर्ज द मुस्लिम्स, तो उन्होंने मुस्लिम्स को फोर्स किया, अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि बिल्कुल भी कांग्रेस ना ज्वाइन करें और ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहें। तो एक ये भी फैक्टर है जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम का गैप इतना ज़्यादा इंक्रीज होता गया, और यही ब्रिटिश चाहते थे। लेटर ऑन द अलीगढ़ कॉलेज बिकेम द सेंटर ऑफ मूवमेंट known as the Aligarh movement. The theme of the movement was loyalty, approval and support of the government. तो इस मूवमेंट का मेन थीम यही था कि हमें गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहना है, अप्रूवल रहना है और हमेशा सपोर्ट करते रहना है। ये सारे मुस्लिम्स ने ठान लिया था। नेक्स्ट इज एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस। Sir Syed Ahmad Khan set up the Mohammedan Anglo-Oriental Defence Association in 1893 in order to promote loyalty towards the rulers and to prevent means protect the Muslims from participating in any political movement. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने डिफेंस एसोसिएशन बनाया था। You all can see this figure 6.2 on page number 133, Mohammedan Anglo-Oriental College, which is now known as Aligarh Muslim University. Events and factors leading to the formation of the Muslim League. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम्स वॉकड आउट हो जाते हैं, कांग्रेस ज्वाइन नहीं करते हैं और अब वो अपना सेपरेट मुस्लिम लीग बनाते हैं। The following events and factors are responsible to the formation of Muslim League. First is the Hindi-Urdu controversy. In the UP, the petitions to the office and courts were submitted only in Urdu, as it was the court language. यूपी में जो petitions फाइल होते थे ऑफिस और कोर्ट्स में, वो उर्दू लैंग्वेज में फाइल होते थे क्योंकि वो कोर्ट लैंग्वेज थी। हिंदूज ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। ऑन 8 अप्रैल 1900 एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, पेटिशंस अब सबमिट होंगी हिंदी में भी क्योंकि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट है। द मुस्लिम्स, अब फिर मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस ऑर्डर। तो इस तरीके से हिंदूज ने भी प्रोटेस्ट किया, मीटिंग्स, कंट्रोवर्सी इसी तरह होती गई और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में गैप और वाइड होता गया, रिलेशंस बेकार होने लगे, वर्सन होने लगे। पॉलिटिक्स एट अलीगढ़। नवाब मोहसिन उल मुल्क led the Aligarh movement after the death of Syed Ahmad Khan. When the Hindi-Urdu controversy was going on, he, as the secretary of Mohammedan Anglo-Oriental College Trust, criticized the order of the British government. तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया या उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है अब कोर्ट में आप पेटिशंस फाइल कर सकते हैं इन हिंदी लैंग्वेज एज वेल, तो इसके अगेंस्ट खड़े हो गए ये सेक्रेटरी जो सैयद अहमद खान के मरने के बाद उन्होंने नवाब मोहसिन मुल्क ने संभाला था। तो ये भी क्रिटिसाइज करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर को। ग्रांटिंग इक्वल स्टेटस, उन्होंने बोला कि इक्वल स्टेटस दिया जाएगा हिंदू उर्दू लैंग्वेजेस को इन यूपी। इन दिस कंटेक्स्ट ही वॉज आस्क्ड टू रिजाइन, और तभी उनको बोला गया कि ही वॉज आस्क्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी की वो पोस्ट छोड़ दे और डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द, और इस प्रोटेस्ट मूवमेंट से क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ है तो उससे भी हट जाए।
द नवाब बिकेम क्वाइट फॉर द टाइम बीइंग, नवाब शांत थे कुछ समय तक, बट द अदर मुस्लिम लीडर्स वर अनॉयड एंड सजेस्टेड इन फेवर ऑफ फाउंडिंग अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द मुस्लिम्स। बाकी मुस्लिम लीडर्स ने बोला कि ऐसा है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरा बनाया जाए मुस्लिम्स के लिए, तभी स्टार्ट होता है मुस्लिम लीग। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, many Muslims participated in the agitation, but gradually the British government alienated a large number of Muslims from this anti-partition movement, assuring them that the newly formed province of Bengal would be a Muslim majority region. Thus, as days passed by, the Muslim upper class came under the influence of the British. तो हाँ, बहुत सारे मुस्लिम्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे एंटी पार्टीशन मूवमेंट में, लेकिन बाद में जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे मुस्लिम्स को अपनी तरफ कर लिया, तो उन्होंने एश्योर किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एश्योर किया, श्योरिटी दी मुस्लिम्स को कि वो न्यूली फॉर्म्ड एक नया बंगाल बनाएंगे जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन रहेगा, मतलब ज़्यादातर मुस्लिम्स रहेंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से दिन बीतते गए और मुस्लिम अपर क्लास ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में आ गए। नाउ नेक्स्ट, मुस्लिम डेपुटेशन। अ मुस्लिम डेपुटेशन ऑफ 35 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स ऑफ इंडिया लेड बाय आगा खान। Aga Khan was the head of the Islami sect of the Muslims. He met the Viceroy, Lord Minto, at Shimla. Shimla was the summer resort. Summer resort, you can say summer capital of the Viceroy. उस टाइम ब्रिटिश लोग समर में शिमला में अपनी छुट्टियां बिताते थे और शिमला में रहते थे। तो दे प्लेस द फॉलोइंग डिमांड्स बिफोर द वाइसरॉय। तो मुस्लिम डेपुटेशन, मुस्लिम के लिए 35 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जो आगा खान के द्वारा, जो आगा खान वॉज द हेड ऑफ द इस्लामी सेक्ट ऑफ द मुस्लिम्स, वो वाइसरॉय से मिलने गए थे शिमला में। उन्होंने वाइसरॉय के सामने उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स रखी। पहला रखा सेपरेट इलेक्टोरेट्स। देयर शुड बी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब मुस्लिम्स शुड इलेक्ट द मुस्लिम्स representative to the provincial council and imperial legislative councils through separate communal electorates। तो यहाँ पे अब बात आ गई हिंदू से अलग होने की, सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्होंने डिमांड करी। देन सेकेंड, वेटेज इन रिप्रेजेंटेशन। द मुस्लिम शुड बी गिवन प्रोपोर्शनेटली मोर देन देयर नंबर्स जस्टिफाइड। तो मतलब मोर सीट्स, अब उनको सीट्स भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मुस्लिम्स का प्रोपोर्शनेटली उसी हिसाब से सीट्स ज़्यादा उनको चाहिए, उनको वेटेज चाहिए। थर्ड, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन द म्यूनिसिपल एंड यूनिवर्सिटी बॉडीज। म्यूनिसिपैलिटी में, म्यूनिसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी उनको मुस्लिम्स के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सीनेट एंड सिंडिकेट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी। नेक्स्ट, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन सिविल, मिलिट्री एंड जुडिशियल सर्विस। हाँ, उनको गवर्नमेंट जॉब भी अब ज़्यादा चाहिए। देयर शुड बी ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स को सिविल जॉब्स और मिलिट्री जॉब्स मिले। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 मुस्लिम जज इन एवरी हाई कोर्ट, ये उनकी डिमांड थी। नेक्स्ट, द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ठीक है, विच वुड एक्ट एज अ सेंटर फॉर मुस्लिम रिलीजन, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ। नेक्स्ट, अब ये डिमांड सुनने के बाद लॉर्ड मिंटो ने क्या एश्योरेंस दिया? लॉर्ड मिंटो एश्योर्ड मीन्स श्योरिटी दी कि मुस्लिम लीडर्स दैट द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स वुड बी प्रोटेक्टेड। उन्होंने एश्योरेंस दी मुस्लिम लीडर्स को कि उनका हक पॉलिटिकली और उनके जो जो फायदे हैं वो सब उनको दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अनिल चंद्र बैनर्जी, लॉर्ड मिंटोज पॉलिसी वॉज मोटिवेटेड बाय डीप पॉलिटिकल कैलकुलेशंस। तो अकॉर्डिंग टू अनिल चंद्र बैनर्जी, उन्होंने बोला है कि लॉर्ड मिंटो की जो पॉलिसी है ना, ये बहुत ज़्यादा उन्होंने कैलकुलेशन करके, मतलब बहुत सोच विचार करके उन्होंने ये सब बोला है। इन ऑर्डर टू वीकेन, उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने क्यों एश्योरेंस दी मुस्लिम लीडर्स को? ताकि एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो बंगाल में चल रहा है वो वीक हो जाए। इट वॉज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी था हिंदू एंड मुस्लिम का डिवीजन होना। बिसाइड्स इट वॉज नेसेसरी टू क्लिप द विंग्स ऑफ द कांग्रेस। और हाँ, साथ ही में ये भी बहुत ज़रूरी था कि कांग्रेस का एक हाथ कट जाए, मतलब उनका एक पर क्रश हो जाए।
ताकि इस तरीके से पॉलिटिकली वो मुस्लिम लीडर्स को अपनी तरफ करके। टू मेक दिस पॉलिसी सक्सेसफुल द ब्रिटिश शोड स्पेशल फेवर टू द मुस्लिम्स। और एंटी पार्टीशन मूवमेंट को वीक करना था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी ब्रेक करनी थी, इसके लिए ब्रिटिश को कुछ स्पेशल फेवर तो देना ही पड़ेगा मुस्लिम्स को, ताकि वो उनकी तरफ आ जाएं और एंटी कांग्रेस हो जाएं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग and question answers.